Hello, you gorgeous people. Welcome back to my YouTube channel Gypsy Escape. My name is Annie, and if you are seeing this face for the very first time, please take a moment to subscribe to my channel and to hit the notification bell button to be notified every time a new video gets uploaded here on this channel. Now, I know the whole setup is very professional because I am going to talk about something professional right here. I am going to talk about content writing, which has been my bread and butter from past 3+ years, like 3.5 to 4 years होने वाले हैं. And I have been working as a freelancer, as full-time, and I have experience in different genres. So as you have read the title of this video, I'm going to talk about how can content writers work from home and earn a living. At the same time, what are the type of content writers? And if you are someone who is just starting with content writing, which is your genre जिसमें आप जाना चाहते हो and आपको कौन सा type of content writing suit करेगी, you can decide for yourself, and there will be timestamps in this video which will help you navigate sections के through जो आपके लिए important section है. You can just go ahead and watch that one. That all being said, let's get started with this video. Okay guys, so the first section is type of content writers. I'm going to talk about 5 type of content writers. Though there are so many content writers, बहुत सारी categories होती हैं, but broadly अगर बात की जाए तो ये 5 type of content writers हैं. And for someone who's starting off, आप इसमें से किसी एक category में या 2-3 categories में भी fall कर सकते हैं, या फिर 5 categories में भी fall कर सकते हैं. But we will be starting with the first category, which is blog writers. Now, who are blog writers? They are the writers जो complex articles को या complex information को simpler form में turn करके एक blog बनाते हैं. And they have an emotional connect usually with an audience, because as an audience हम उसी चीज़ को read करना पसंद करेंगे अगर वो हमारी कोई problem solve कर रहा है या फिर उसमें कुछ interesting factor है. So that is what blog writers have to know, and that is the skill they require कि किस तरह से audience का वो emotional connect पकड़ना and उनके साथ उस way पे connect करना. Now the blog writers, they write in different genres and उनकी niches अलग अलग होती हैं. They can be writing about travel, they can be writing about fashion, they can be writing about software, they can be writing about anything which interests them, and उसके basis पे they can easily find job उन categories में. Talking about the kind of skills that are required to be a blog writer, you must be good at making an emotional connect with the audience, because अगर आपको कोई भी hire कर रहे हैं या अगर आप अपना भी blog लिख रहे हैं, you want that a person should come to the blog and read it till the very end, ना कि वो आए और वापस चला जाए. So that is very essential. आपको वो emotional connect establish करना आना चाहिए. Now you should be good at selecting audience. Be it again you are writing for yourself or for your client, आपको अपनी audience सही से select करनी आनी चाहिए. वो कौन से gender की है, वो कौन सी age की है, कौन से area से है, what is the interest of that audience, and you know, are they from very elite class या फिर middle class या किस type की audience है. You should be able to select that one when writing a blog. At the same time, the blog writers should be good at research, because आपको एक बहुत complex article को simple way में प्रेजेंट करना है तो आपको रिसर्च अच्छे से करनी आनी चाहिए. एंड एट द सेम टाइम आपको अपना कंटेंट SEO फ्रेंडली भी बनाना आना चाहिए. उसके लिए SEO की नॉलेज होना ज़रूरी है. नाउ आई विल लिंक नीचे कुछ कोर्सेज दैट यू कैन टेक अप, बट अगर आप कोर्सेज नहीं भी लेना चाहते, YouTube, Google, and even on Instagram, there are so many people who will be telling you what SEO is and how to make your content SEO friendly. As blog writers, your job responsibilities are going to revolve around writing articles, then writing interviews, and even blogs. अब articles और blogs में ना इतना फ़र्क नहीं है. It's just that those articles हम उन blogs को बोलते हैं जो technically वो काफ़ी information rich होते हैं, and blogs are which are very easy flowing and एक layman को भी जो समझ आ जाए. And these are the 3 job responsibilities जो आपको मिल सकती हैं if you are writing blog content. Moving on to the second category of content writers, we have journalists. Now journalists are usually the people जिनको वो emotional connect जिसकी मैं बात कर रही थी, उनका ये सबसे top point होना चाहिए. Like एक किसी भी information में ना वो emotional connect and वो मसाला कैसे डालते हैं, just to use the right word,
journalists should be very well aware of that, and they should be good as storytellers. Now उनको एक अगर बहुत नॉर्मल कंटेंट है जो कोई नहीं पढ़ेगा, अ जर्नलिस्ट शुड बी गुड कि उसको एक स्टोरी में कैसे बना देना है, ताकि अगर कोई भी पढ़ रहा है जिसका उस एरिया में इंटरेस्ट है भी नहीं, still that person finds it interesting. Now journalists can also work offline, like they can work for magazines and everything. They can also work online. अब online journalist की जो एक example है is Humans of Bombay. So you might have seen the kind of stories they write, the compelling stories they have. That is the work of the journalists that are working with them. अगर job responsibilities की बात की जाए तो they have to write emails, they have to write press releases, and at the same time they must be good at writing long form content and headlines. अब आप कोई आर्टिकल आपके सामने पॉप अप हो रहा है जिसकी हेडलाइन just grabs you, so you are going to read that. So that is what a journalist should be good at. Headline ही ऐसी डाल दो कि कोई भी हो ना वो एटलीस्ट क्लिक तो करे आर्टिकल पे. Now let's talk about copywriters. Now copywriters are very different from content writers या blog writers जो हम कहते हैं. Now copywriters are people who write ad copies. अगर सिंपल वे में मैं इसको पुट अप करूँ, so anything which makes the audience take an action, वो एक कॉपी होती है. लाइक अगर आप कभी गूगल ऐड देखते हो या फेसबुक ऐड देखते हो विच सेज यू टू बाय अ प्रोडक्ट और बाय अ कोर्स और वॉच दिस वीडियो, वो सारी आपसे एक्शंस ले रही हैं, एंड वो जो लिख रहा है दैट पर्सन इज अ कॉपीराइटर. नाउ इफ यू आर समवन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड कंटेंट राइटिंग में एंड यू आर जस्ट सिलेक्टिंग योर नीश कि आपको ब्लॉग्स लिखना पसंद है या कॉपी राइटिंग करना पसंद है, I will highly suggest that you take up career as a copywriter. Now जब तक ब्रांड्स रहेंगे copywriters की डिमांड रहेगी, बिकॉज चाहे कोई ब्रांड ब्लॉग्स नहीं लिखता, चाहे कोई ब्रांड न्यूज़ लेटर्स नहीं लिखता, विच इज़ नॉट द केस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. अगर कोई ये सब नहीं करता फिर भी उनको कॉपीराइटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. सो इफ़ यू आर समवन जो स्टार्ट कर रहा है, प्लीज़ टेक अप कॉपी राइटिंग एंड उसमें अपने स्किल्स को आप ज़्यादा एडवांस बनाइए, उसमें अपनी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज कॉपी राइटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है एट द मोमेंट. एंड दीज कॉपी राइटर्स ऑल्सो वर्क एज सोशल मीडिया हैंडलर्स. दे यूजली राइट जो कैप्शंस आप देखते हो इंस्टाग्राम पे या जो क्रिएटिव्स होते हैं उसके ऊपर जो कंटेंट होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्किल्स, दे शुड बी क्रिस्प राइटर्स. 2-3 लाइन में समझ आ जाना चाहिए कि राइटर क्या कहना चाहता है या ब्रांड क्या कहना चाहता है. देन अंडरस्टैंड द इमोशंस. अगेन आप तभी एक ऑडियंस को कंपेल कर पाओगे एक्शन लेने के लिए अगर आप इमोशन समझ पा रहे हो. टॉकिंग अबाउट द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे हैव टू राइट द वेब कॉपीज, दे हैव टू राइट इन्फोग्राफिक्स, एड्स फॉर सोशल मीडिया एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस. दीज विल बी द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. टॉकिंग अबाउट द फोर्थ कैटेगरी विच इज टेक्निकल राइटर्स. नाउ अनलाइक other categories which I have talked about, technical writers का एक एरिया में स्किल होना बहुत ज़रूरी है, which is like if they have experience in कंप्यूटर का फील्ड तो उनको पता होना चाहिए how coding works. अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो उनको उसकी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, बिकॉज फ्रॉम टेक्निकल राइटर्स what is expected is that कोई भी बहुत एक्सटेंसिव डिफ़िकल्ट कोड है उसको एक सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना. एट द सेम टाइम इट इज़ द टेक्निकल राइटर्स ओनली जो एक टेक्नोलॉजी को एक मैनुअल में कन्वर्ट करते हैं. सो इसी से हमारी बात आती है व्हाट आर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टेक्निकल राइटर्स. सो इट इज़ लाइक क्रिएटिंग FAQs, मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शंस किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए. ये सब एक टेक्निकल राइटर का काम है. एंड इसीलिए ही मैं आपको कह रही हूँ कि जो टेक्निकल राइटर्स हैं उनको कोडिंग या टेक्नोलॉजी इस सब के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. नाउ फॉर अ पर्सन लाइक मी हु डज नॉट हैव कोडिंग का एक्सपीरियंस, हु डजंट नो ABC ऑफ कोडिंग, तो अगर मुझे एक कोड पकड़ा दिया जाएगा टू मेक इट सिंपल फॉर द ऑडियंस, अगर मुझे वो कोड ही समझ नहीं आ रहा तो मैं उसको ऑडियंस के लिए कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगी. सो दैट इज़ द वर्क ऑफ टेक्निकल राइटर्स. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ कैटेगरी, वी हैव स्क्रिप्ट राइटर्स या ई-बुक राइटर्स. नाउ दीज आर द पीपल हु विल बी राइटिंग, as the word says, scripts, and they will be writing e-books. So सबसे important skill है again storytelling and at the same time long working hours. तो उनको आदत होनी चाहिए बैठ के scripts complete करने की, लंबे टाइम बैठने के लिए, because जब आप अपनी बुक नहीं लिख रहे किसी और के लिए scripts लिख रहे हैं या
कुछ भी लिख रहे हैं लॉन्ग फॉर्म का, तो दोज पीपल विल एक्सपेक्ट समथिंग जल्दी. दे विल एक्सपेक्ट कि आपके पास 1-2 महीने हैं, राइट द होल स्क्रिप्ट, राइट द होल ई बुक या समथिंग लाइक दैट. तो आपको वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स की आदत होनी चाहिए. अब स्क्रिप्ट राइटर्स जो होते हैं उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखना, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स लिखना, या ई बुक राइटर्स जो होते हैं ई बुक्स लिखना. अब ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपका इंग्लिश में ही सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है. इफ़ यू आर समवन who is good at the regional language, this can be also a career for you. Because बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लोग रीजनल लैंग्वेजेस में, as you might have seen. तो उन रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए लोग स्क्रिप्ट राइटर्स एंड इन कंटेंट राइटर्स को ही अप्रोच करते हैं. सो इफ़ यू आर गुड एट योर रीजनल लैंग्वेज, you can make a career out of this as well. Now that we are done with the section of type of content writers and उनकी job responsibilities and skills के बारे में बात हो गई है, तो अब बात हम करते हैं important section के बारे में जिसके लिए आप सब यहाँ पर हैं, which is ways to earn online. How can you work and earn online while sitting at home? Now इसके अंदर भी बहुत अलग अलग categories हैं. I'll start with the first category which is blogging. Now blogging and vlogging बहुत अलग चीज़ होती है. Vlogging is video form of talking to people and blogging is written form of talking to people and talking about your ideas. Now blogging में आप किसी और के लिए भी blogs लिख सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप blogs लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए. If you have interest in a particular area, suppose आपको travel में interest है, hospitality में interest है, या फिर product reviews देने में interest है, तो आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं. बट फॉर समवन हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, प्लीज़ डू नॉट स्पेंड मनी इन बाइंग योर ओन डोमेन. जस्ट यूज़ वर्डप्रेस एंड या फिर blogger.com. इनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाओ, ईजी टू हैंडल, start putting content. For blogging, this is the first tip that I would like to give and the most essential tip. Be consistent, make your audience. अपना एक बेस आप establish करो. जब आपको पता लग गया okay, I'm getting good views, there are a lot of interaction that is happening on my blog, तब आप जाके अपना डोमेन ले सकते हैं एंड उसको Google AdSense के थ्रू एड्स रन कर सकते हैं एंड विद व्यूज यू अर्न मनी. दैट इज़ व्हाट ब्लॉगिंग इज़. अब ब्लॉगिंग का सेकेंड वे टू अर्न मनी इज़ बाय गिविंग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट रिव्यूज़. अब इसमें भी आपको एक ऑडियंस इस्टेब्लिश होनी चाहिए, फिर ही ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे ताकि आप एक उनको रिव्यू दे सको एंड योर ऑडियंस can see those products and buy it. Just like we see on social media, the same happens on blogging as well. Now the second option is freelancing through websites such as fiverr.com, upwork.com, freelancer.com या फिर LinkedIn. अब ये जो मैंने पहली 3 वेबसाइट्स मेंशन की जो फ्रीलांसर वेबसाइट्स है विच आर रियली फेमस एंड आई ऑल्सो गॉट अ क्वेश्चन अबाउट दिस जो मैंने पोल डाला था दैट आर दे वर्थ इट. सो माई आंसर इज़ नो, दे आर नॉट वर्थ इट, नॉट स्पेशली फॉर कॉन्टेंट राइटर्स. एक तो स्टार्टिंग में जब आप इन वेबसाइट्स पे जाओगे सच एज फ्रीवर्क, अपवर्क, freelancer.com, वो बहुत डिफ़िकल्ट है ऑपरेट करना, क्लाइंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है उसके ऊपर. एंड कंटेंट राइटर्स को जो क्लाइंट्स मिलते हैं ना, दे आर पीपल हु वांट टाइप राइटर्स. सो दे हैव PDF, उसको वो वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं. दे पे यू पर वर्ड बट दे आस्क यू फॉर सम अमाउंट एज वेल. Please keep this in mind as a content writer or as any artist. You should not be paying but you should get paid for your work. So इसलिए इन वेबसाइट्स के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं गया. हार्डली आई हैव गॉट 1 to 2 क्लाइंट्स इसके थ्रू, नहीं तो सारे ये इस तरह के स्पैम ही होते हैं. सो डू नॉट फॉल प्रे टू दीज स्पैम्स. लिंक्डइन की बात की जाए तो लिंक्डइन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड स्पेशली फॉर कंटेंट राइटर्स बिकॉज लिंक्डइन कैन सर्व एज योर पोर्टफोलियो. आप उसके ऊपर पोस्ट लिखते रहो, अपना कंटेंट लिखते रहो, राइट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, वॉट एवर यू लाइक टू राइट अबाउट. अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना पसंद है, राइट छोटे छोटे ब्लॉग्स ऑन लिंक्डइन एंड इट विल सर्व एज योर पोर्टफोलियो जब आप आगे क्लाइंट्स को दिखाओगे. नाउ यू कैन सर्च जॉब्स. आप कंटेंट राइटर टाइप करो इन जॉब्स एंड सर्च फॉर रिमोट. आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड यू कैन अप्लाई. कीप अप्लाइंग यार, मतलब 10 अप्लाई करो दिन की, 20 अप्लाई करो. 1-2 हफ्ते में आपको 1-2 क्लाइंट्स आ जाने चाहिए इफ़ योर कंटेंट इज़ रियली वर्थ इट. Now the third way you can earn online is through websites. Now there are 2 types of websites that will pay you to write.
The first is revenue based and the other is fixed pay. Now revenue based are based on the number of people who are viewing your content. So वो आपकी वेबसाइट नहीं होगी, it will be another website, you will be writing content एंड उसके ऊपर जितने व्यूज आएंगे, एड्स होंगी, उस बेसिस पे आपको रेवेन्यू मिलेगा. ओके, सो द फर्स्ट रेवेन्यू बेस्ड वेबसाइट इज हब पेजेस एंड इसके ऊपर आपको रजिस्टर करना होता है एंड यू हैव टू राइट 700+ वर्ड्स एंड गेट इट अप्रूव्ड. अप्रूव होने के बाद आपको इसमें गूगल एडसेंस का अकाउंट भी लिंक करना होता है. नाउ अ न्यूबी हु डजंट नो मच अबाउट दिस, उनके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकली हाई लेवल हो जाएगा टू मेक ए गूगल एडसेंस अकाउंट, फिर एड्स रन, उसके थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट करना. बट इफ़ यू आर समवन हु इज एक्सपीरियंस, दे कैन अप्लाई फॉर हब पेजेस एज वेल. आप अपना फेसबुक या फिर गूगल कुछ भी इसके साथ लिंक करके आप आराम से साइन अप कर सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर. आपको इन सारी वेबसाइट्स का लिंक जो भी मैंने मेंशन किया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ द अदर वेबसाइट इज शाउट मी लाउड. नाउ विद शाउट मी लाउड इट इज़ फॉर पीपल हु आर गुड एट डिजिटल मार्केटिंग, या फिर जो मार्केटिंग कॉन्टेंट होता है दे आर गुड एट राइटिंग दैट. एंड अगेन एज अ वेबसाइट विच पेज ऑन रेवेन्यू, तो आपको जितने व्यूज़ आएंगे, जितनी एड्स होंगी, उसी बेसिस पे आपको भी पे किया जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर. नाउ वंस वी आर डन विद द रेवेन्यू बेस्ड वेबसाइट, दीज टू द वंस दैट आई वांटेड टू रिकमेंड यू गाइस. अब बात आती है फिक्स्ड पे वेबसाइट्स की. नाउ फिक्स्ड पे वेबसाइट्स आर इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके कंटेंट पे व्यूज़ आते हैं, क्या होता है, आपको पे किया जाएगा पर वर्ड या फिर कितना कंटेंट की क्वांटिटी है उस बेसिस के ऊपर, एंड इट इज़ फिक्स्ड for a certain amount. Now there are some websites. The first one I will talk about is Writer Bay. अब Writer Bay के ऊपर आपको एक टेस्ट देना पड़ता है and almost like $20 per page you will earn. Indians can also register. ये सारी websites मैं usually Indian audience के लिए ही बना रही हूँ. Now if you have experience in the fields like accounting, advertising, like there are so many fields. इनमें से आपका किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप इस वेबसाइट के ऊपर राइटर बे के ऊपर रजिस्टर कर सकते हो. यू हैव टू पास द टेस्ट. वंस यू पास द टेस्ट देन you can start writing content. Now another website is for specially Indians only. It is ISRGKB and there are some good points in this also, but there are some bad points also in this website. And इस website के लिए content लिखने में which I will talk about. बट यू डोंट हैव टू पास एनी टेस्ट, बट एट द सेम टाइम आपको रजिस्टर वगैरह करना है. कोई डिग्री वगैरह इस सब की ज़रूरत नहीं है. आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं. अब इसमें जो मेन इशू है इज़ द पे आउट. इट इज़ रियली लेस. लाइक फॉर 750 to 950 वर्ड्स यू गेट 50 रुपीज़. येस, यू हर्ड दैट राइट, यू जस्ट गेट 50 रुपीज़. एंड आगे जाके ये बढ़ता रहता है. ऑब्वियसली देयर आर टाइमली, अगर आप सबमिट कर रहे हो आर्टिकल को तो यू डू गेट बोनस. एंड अगर आप फेसबुक पे शेयर करते हो तो उसके बेसिस पे भी आपको बोनस मिलता है. बट फॉर समवन हु इज़ एन एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर दिस वेबसाइट इज़ नॉट फॉर यू. आप इससे बहुत ज़्यादा अर्न वैसे ही कर लेते हैं. बट फॉर समवन हु इज़ स्टार्टिंग ऑफ, यू कैन रजिस्टर ऑन दिस वेबसाइट, गेट स्टार्टेड. जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो turn it into your portfolio as well. आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. फॉर बिगिनर्स दिस इज़ अ वेबसाइट आई विल सजेस्ट, ताकि आपको प्रैक्टिस हो कंटेंट लिखने की एंड यू हैव अ पोर्टफोलियो इन हैंड आगे अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए. नाउ द थर्ड वेबसाइट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़, जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते एंड आई होप मोर पीपल टॉक्ड अबाउट दिस, ताकि और लोगों को और कंटेंट राइटर्स को पता चले. एंड द वेबसाइट इज़ पेपर कंटेंट. Now with this website I have a personal experience because I have been working with them. I am still working with them and it is one of the website that I really like to work with because पहली चीज़, एक तो आप टेस्ट पास करोगे, आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा, जैसा भी आपने टेस्ट पास किया है उस बेसिस पे आपको एक अमाउंट डिसाइड किया जाएगा जितनी आपको पे मिलेगी पर वर्ड. सो सपोज यू गेट 0.5 या 1 रुपी या 2 रुपीज़ भी मिलते हैं, तो आप इस बेसिस पे अब आपको कंटेंट आएगा उनसे. नाउ टू टेल यू गाइज हाउ द कंटेंट एक्चुअली वर्क्स, लाइक आपको कंटेंट किस वे से आता है. लाइक पेपर कंटेंट हैज़ अ टीम जिनके पास क्लाइंट्स आते हैं एंड दे से वी नीड कंटेंट फॉर आवर वेबसाइट. एंड उस बेसिस पे वो क्या है, वो कंटेंट अपने कंटेंट राइटर्स में डिवाइड करते हैं विच आर वी पीपल हु रजिस्टर विद देम.
एंड आपको उसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है आप किस तरह का कंटेंट प्रेफर करते हो, किस डेज पे प्रेफर करते हो। सो उस बेसिस पे आपको कंटेंट आता रहेगा। लाइक अगर आपने हॉस्पिटैलिटी या टूरिज़्म किया है डिसाइड, तो आपको फ़्लाइट्स के बारे में लिखने में आ सकता है, होटल्स के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। एंड यू गेट 4 to 5 आर्टिकल्स टू राइट यूजुअली। एंड अगर आपकी 1 रुपीज़ भी है तो यू गेट 1000 रुपीज़ फॉर स्पेंडिंग व्हाट लाइक 3 hours पर डे। एंड वो भी हर दिन नहीं, 3 hours whenever you get the content. So like Pepper Content is a great website. You can register as an editor also, as a content writer, as a writer as well. And I applied for editor, I did not get that, so I applied as a writer and I am working as a writer. And धीरे धीरे आपका अगर पे लाइक 1 rupees है, वो धीरे धीरे आपकी अपग्रेड भी करते रहते हैं बेस्ड ऑन द कंटेंट that you are providing to them. And payment बहुत easy है, you get the payment 15th को हर month के। and this is not a sponsored video by them, they don't know that I am a writer with them and they don't know कि उनका एक writer YouTuber भी है। So no, this is not sponsored, I just hope more people know about them. So these were the website that I wanted to talk about. सारे links आपको description में मिल जाएंगे for you to register and आप अच्छे से browse करो, website देखो आपके इंटरेस्ट की है नहीं है। एंड अगर आप फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं एंड आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो यू कैन रजिस्टर ऑन ऑल द वेबसाइट्स एज वेल एंड स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। आप डिसेंटली अर्न करना स्टार्ट कर दोगे घर बैठे बैठे। नाउ इन दिस अनदर सेक्शन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम टिप्स which will be really helpful for those who are stepping into this field. Now I know the field is really saturated and सबको लगता होगा हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। Now you have to understand that जहाँ भी बिजनेस है वहाँ पर कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत है। So if there are businesses coming up, there are startups coming up, तो कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत रहेगी। Now either you can let us take away that job or you can come up and apply for those jobs. ऑल्सो अब इसमें जो टिप्स की मैं बात करूँगी, द फर्स्ट इज पोर्टफोलियो। नाउ व्हाट इज़ अ पोर्टफोलियो फॉर अ कंटेंट राइटर? नाउ फॉर अ कंटेंट राइटर द पोर्टफोलियो इज़ नथिंग बट जस्ट पास्ट एक्सपीरियंस, आपने जितने आर्टिकल्स लिखे हैं। इट इज़ंट अबाउट डिग्री और एनीथिंग। यूजुअली क्लाइंट्स आपकी डिग्री देखते तक नहीं हैं, वो आपका पास्ट वर्क देखेंगे एंड कौन से जॉनर में है आपका काम। तो आपको वो आर्टिकल्स इकट्ठे करके PDF फॉर्म बनाओ या फिर एक लिंक बनाओ and just share it with your client. That is your portfolio. Prepare it. And अगर आपके पास नहीं है, suppose someone is starting and they are like हमारे पास past experience तो है ही नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? just start writing content. Whatever interests you. Grammarly install करो. Grammarly is your best friend. Like grammatically वो आपके सारे errors देखता रहेगा. Even the free version is quite good. आपको अभी premium लेने की भी ज़रूरत नहीं है if you are starting off. एंड यू शुड ऑल्सो नो कि आपका क्लाइंट ब्रिटिश इंग्लिश चाहता है, अमेरिकन इंग्लिश चाहता है या कैनेडियन इंग्लिश चाहता है, आपको ये पता होना चाहिए। एंड ग्रामरली कैन बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंगली, वो आपकी इंग्लिश उस बेसिस पे चेक करेगा। एंड वंस यू आर डन विद द पोर्टफोलियो, अदर थिंग इज लिंक्डइन। LinkedIn पे you can start writing content. I don't write usually on LinkedIn because I do have 1-2 clients and then I have my full-time job, so usually I don't write. बट इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। आप लिंक्डइन पे छोटा छोटा पोस्ट लिखते रहो एंड दैट कैन सर्व एज योर पोर्टफोलियो एज वेल एंड लोग वो देख के भी आपको जॉब दे देंगे। Another important thing is that you should know your value. It is not only about content writers, it is about artists in general. Like there are so many people who will try to exploit you and आपसे ज़्यादा content लेने का try करेंगे या कम पैसे देने का try करेंगे। So for beginners, the optimum pay is like anything above 0.4 पैसा per word. उससे कम मतलब 0.3 से अगर कुछ भी कम है, प्लीज़ डोंट टेक इट। एंड अगर 1 रुपया आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है पर वर्ड, इट इज़ रियली गुड, जस्ट टेक दैट। एंड उससे कम तो बिल्कुल भी मत लेना 0.3 से, बिकॉज इट इज़ लिटरली योर एक्सप्लॉयटेशन। एंड एज समवन हु इज़ एंटरिंग इन टू द मार्केट, दिस इज़ अ वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए अपने काम की। एंड द अदर थिंग इज, शुड this work only for all these tips should work only for English content writers? No, these tips are for any content writers. I am experienced in English field only, so that is why I am suggesting you in the same way. But ये नहीं है कि कोई भी रीजनल राइटर्स के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एज आई सेड, लाइक स्क्रिप्ट राइटर्स, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अवेलेबल होती है। यू जस्ट हैव टू लुक। आई हैवंट लुक्ड, सो आई कांट टॉक मोर अबाउट दैट।
but obviously there are people who are looking for regional writers as well. Finally, another essential tip is that start networking. Like, know more people. अपने LinkedIn पे ऐड करो, Instagram पे फॉलो करो, Facebook ग्रुप्स पे जाओ. Just look for people to socialize with who are into this field. Now, into this field, I mean those who are content writers या those who are digital marketers. Now, digital marketers के पास जब clients आते हैं, they also look for that if they have content writers in their known जिनको वो साथ में ही hire करना चाहते हैं digital marketer के साथ, so you can contact them as well and they can help you find some gigs. And the other thing is कि अगर आप content writer हो, let other people know in your circle that you are a content writer, and if they have any job या फिर वो अपना कोई business start कर रहे हैं, they can hire you. मतलब अभी तक मुझे जितने gigs आए हैं, I will be honest, it is through word of mouth. तो people know that I am a content writer, so they do pass on the thing. अगर कोई बोले content writer hire करना, so they tell about me. They say that yeah, we know Annie, she's a content writer. So उस वे से मुझे बहुत सारे gigs आए and usually मुझे उसी वे से clients मिले हैं. Okay guys, so with this we come towards the end of this video, and I hope this video proved really helpful to you guys for someone who has looked and searched for how to find job as content writer. Obviously this is what you were searching for. मैं जितनी अपनी information एक video में incorporate कर सकती थी, I did, and I would love to make more parts because being an experienced person in this field, I would love to share. ऐसा कुछ भी नहीं है that the competition will increase. No, you guys will have your clients, I'll have mine, and ऐसा कुछ नहीं है that we are eating up each other's job. It's we have to uplift people and more people are employed. That is the only essence of this video. Like, you people can earn by doing the thing you guys enjoy. I love writing content and I earn from that. That is my motivation. And yeah, that's all. If you like this video, give it a thumbs up. Comment down आपके जो भी suggestions हैं, कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना है, आप मुझे social media पे भी DM कर दो. I will be responding to that as well. Any questions, let me know. Share this video with your fellow content writers या आपकी family में कोई है जो इस career को लेना चाहता है. Share with them, and I'll see you guys next time with another interesting video. Till then, bye bye, take care.